So yes, students, have a wonderful good morning, or whatever time you're watching this. Good afternoon, good evening. I've come recently watched a video of Simon Sinek, and he said that top companies should always go for invention. So we are coming up with a very small invention just to ensure that you utilize your holidays nicely. We have come up with these video lectures. And before I start with prelim number 6, the extra paper that you will be solving, I would just like to say a very quick quote told by one of the Carmel School topper. He said, I believe in work hard, party harder. So this quote is going to be very apt for you. Abhi exam time hai, so you work hard, and after that you are going to party harder, right? So let's get started. Students, so the first question number 1A, the question is, when 3 coins are tossed simultaneously, the number of elements in sample space is dash. I have purposely not written the options, and I will suggest that you also don't look at the options. आप अपने सबसे पहले आंसर निकालो. So question क्या है? When 3 coins are tossed. अभी वो कॉइन वाला टॉसिंग सम्स है ना, कॉइन टॉसिंग सम्स, उसका रूल क्या है वो याद रखो. The rule for number of sample points in coin sums, क्या है स्टूडेंट्स वो रूल? आप जब भी ऐसा सिंपल सोचो, जब व्हेन यू आर टॉसिंग वन कॉइन तो कितना ऑप्शंस आता है? हेड एंड टेल, 2 ऑप्शंस आते हैं, तो वो बेस हो गया, एंड उसके ऊपर पावर में आएगा नंबर ऑफ टॉसेस. सो दिस इज द रूल. अभी हाउ मेनी कॉइन्स आर बीइंग टॉस्ड? 3 कॉइन्स. तो आप यहां पे क्या बोलेंगे? 3 coins are tossed, therefore n of s will be 2 raised to n, मतलब 2 raised to 3. Now 2 raised to 3 means 2 into 2 into 2. That'll give you 8. Now do you have 8 in the option? 8 ऑप्शन में है क्या? Yes, and that is option D. तो आपको एग्जाम में खाली लिखना है ऑप्शन डी. यू डोंट हैव टू शो दिस वर्किंग. पता है ना आपको, ये खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है. आपको खाली लिखना है सॉल्यूशन में 1D. अभी ये क्वेश्चन पेपर में एक स्मॉल लिखा है, एग्जाम में अगर कैपिटल डी, यू हैव टू राइट कैपिटल डी. सो क्वेश्चन नंबर 1A का सेकंड वन स्टूडेंट, ये आपको क्वेश्चन दिया है √5m² माइनस √5m प्लस √5 इक्वल्स टू 0. नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गिवन इक्वेशंस. अभी उसके बारे में, रूट्स के बारे में दिया है 4 ऑप्शंस में. तो आई टोल्ड यू, हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शंस पहले देखेंगे नहीं, बट रूट्स के बारे में है. रूट्स के बारे में कुछ भी आएगा तो हम लोग क्या देखते हैं? वी ऑलवेज लुक एट द डिस्क्रिमिनेंट, मतलब b² माइनस 4ac. तो सबसे पहले लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c. So in the above equation you can say here a equals to √5, b equals to minus √5 and c equals to √5. तो आपको डिस्क्रिमिनेंट चाहिए. डिस्क्रिमिनेंट इज b² minus 4ac, that gives you minus √5 the whole squared minus 4 into √5 into √5. Now don't be in a great deal of hurry. Minus into minus is plus, of course, and √5 का square will be 5 minus 4 into √5 again is 5. So it's 5 minus 20, which gives you minus 15. So minus 15 मतलब क्या हो गया? डेल्टा क्या हो गया? डेल्टा हो गया नेगेटिव, लेस देन 0. So you can say discriminant is less than 0. Therefore, roots are what? There are no real roots. So you can say roots are not real. हम लोग बोल सकते हैं नारियल, ना रियल. ओके, सो कौन सा ऑप्शन है ये? रूट्स आर नॉट रियल, ऑप्शन सी. I said नारियल and our Manoj bhai is smiling there. Yeah. Okay, question number 1A का third one, the third MCQ. First 4 terms of an AP are dash. आपको first 4 terms find करना है AP का, whose first term is -6 and the common difference is 6. तो first term मतलब क्या? हम लोग लिखेंगे A. A is what? -6. common difference मतलब D. D क्या हो गया? +6 हो गया. Now students, we know that हर एक टर्म क्या होता है, जब आप आगे आगे जाएंगे ना तो टर्म बढ़ते जाएगा, बिकॉज द डिफरेंस हियर इज पॉजिटिव. तो ये हमारा फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं ना,
तो सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म विल बी फर्स्ट टर्म प्लस द डिफरेंस, मतलब -6 + 6 हो जाएगा, तो वो हो गया 0। अच्छा थर्ड टर्म क्या होगा, इसका पहले वाला टर्म प्लस वापस से डिफरेंस ऐड कर दो, तो 0 + 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया। एंड फोर्थ टर्म, 4 ही टर्म्स हो जाता ना, इट विल बी थर्ड टर्म प्लस द डिफरेंस, दैट इज 6 + 6 मतलब 12। तो फर्स्ट टर्म हमारा जो था वो था -6। So basically what are the four terms? The four terms are -6, 0, 6 and 12. कौन सा ऑप्शन है ये? Let's see the question paper. So this is option -6, 0, 6 and 12. That is option D. Right? Okay. So students, fourth one क्या है? Cumulative frequencies in a group frequency table are useful to find dash. अच्छा स्टूडेंट्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके लिए लगता है हमको? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ क्या रहे हैं, मीन, मीडियन, मोड। मीन में तो जरूरत नहीं है ऑब्वियसली। अब बचा मीडियन एंड मोड। मीडियन का फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं? मीडियन L + n/2 - CF × H/F, ये था मीडियन का फॉर्मूला। और मोड, मोड में आता है L + FM - F1/2 FM - F1 - F2 × H। तो कहां पे आ रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? ऑब्वियसली इट इज कमिंग इन द फॉर्मूला फॉर मीडियन, सो आंसर इज मीडियन। विच ऑप्शन इज दैट? ऑप्शन बी। So let me tell you once again, आपको खाली एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1A फर्स्ट वन का क्या ऑप्शन था, सेकंड का क्या ऑप्शन है, खाली वो लेटर लिखना है, दैट्स इट। वर्किंग दिखाना नहीं है क्वेश्चन नंबर 1A में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1A इज डन। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1B ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रामायण लिखना नहीं है, काम का बात लिख के 1 मार्क आपको लेना है, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ना भी नहीं है। तो क्या क्वेश्चन में बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड, कितना शेयर्स मिला है व्हेन 50,000 वाज इन्वेस्टेड, 50,000 रुपए का आपने शेयर खरीदा है, और रेट क्या दिया है, दिस इज फेस वैल्यू 200 रुपया है, लेकिन मार्केट वैल्यू 100 रुपया है। अरे फेस वैल्यू कुछ भी रहने दो, मार्केट वैल्यू इंपॉर्टेंट है ना, वो कितने बिक रहा है, वो 100 रुपए में बिक रहा है, तो यू आर गोइंग टू पे 200 आउट 100, ऑब्वियसली 100। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स विल बी इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। सो टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया है, 50,000, और एक शेयर का कॉस्ट कितना है, मार्केट वैल्यू 100 रुपया। सो यू कैन कैंसिल द 2 zeros, 500। सो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे लास्ट में 500 शेयर्स वर रिसीव्ड। लास्ट में फाइनल आंसर लिखने भूलना मत, खाली 500 मत लिख के आ जाना, ओके? आपको पूरा लिखना है सेंटेंस, 500 शेयर्स वर रिसीव्ड। सो इधर आपको 1 मार्क मिल जाएगा, शायद हाफ मार्क यहाँ पे रहेगा, हाफ मार्क यहाँ पे रहेगा, टोटल 1 मार्क हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 1B का सेकंड सम है, 1 मार्क वाला। डिटरमाइन वेदर x = 1 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x - 5 = 0। आपको चेक करके बताना है कि ये x = 1 है ना, वो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। मतलब आपको चेक करके देखना है कि अगर x के जगह पे 1 लिखा ना, x के जगह पे 1 लिखा, तो इज LHS = RHS। सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। विल से substituting x = 1 in LHS of the equation. So what is the LHS of the equation? LHS of the equation is x² + 4x - 5. So instead of x² you are going to write 1 square, instead of your x you are going to write 1. So what you have is 1 + 4 - 5. Now 1 + 4 - 5 is obviously 0. Now is it equal to RHS? हमने LHS लिखा था ना, Is it equal to RHS? Yes. So हम लोग बोल सकते हैं when x = 1, LHS = RHS. Therefore x = 1 is a root
ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्केल लेके बॉक्स बना देना, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। ये बहुत बच्चे लास्ट में लिखना भूल जाते हैं, सो यू मे लूज मार्क्स। खाली वो मत लिखा है LHS इक्वल टू RHS। आपको उन्होंने पूछा है कि x इक्वल्स टू 1 इज अ रूट और नॉट, यस आपको बताना है वो इट इज अ रूट, इट इज नॉट अ रूट। तो इन दिस केस इट इज अ रूट। सो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन 1b। फ्रेम इक्वेशन यूजिंग टू वेरिएबल x एंड y, और क्या बोला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36। सो यहां पे हम लोग बोलेंगे लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, let the length of the rectangle be x centimeters, let the breadth of the rectangle be y centimeters। अब उन्होंने पेरीमीटर बोला है 36, सो फॉर्मूला लिख दो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 into length plus breadth। तो पेरीमीटर दे हैव गिवन इज 36। 36 equals to 2 into length we have assumed as x, breadth we have assumed as y। सुन भाई 2 इधर मल्टीप्लाई करते इधर आके डिवाइड करेगा, 36 upon 2 equals to x plus y। ये कट होके 18 हो जाएगा, it is equal to x plus y। So what's the equation? x plus y equals to 18 is the required equation। Okay, next you have question number 4। decide whether the sequence is an AP। if it is an AP then you have to find the common difference। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको 4 टर्म्स दिख रहा है। what are the 4 terms? the 4 terms are, first term is -10, then T2 second term is -6, the third term is -2 and the fourth term is 2। तो हम लोग को कॉमन डिफरेंस पहले निकालना है। सीक्वेंस एपी में है या नहीं आपको वो देखना है। तो सबसे पहले क्या देखना है आपको, क्या चेक करना है कि जितना भी टर्म्स दिया उसमें का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस निकालते, कभी भी सीधा मत करो ऐसा T1 - T2 नहीं करना है आपको, उल्टा करना है, T2 - T1। सो T2 - T1 क्या हो रहा है वो, -6 -10। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बीच में माइनस साइन है, माइनस के बाद में -10 है। सो -6 + 10, सो हो गया 4। नाउ यू सी T3 - T2 देखो। सो T3 - T2 इज -2 -6, दैट गिव्स यू -2 + 6 विच गिव्स यू 4। एंड लास्ट वाला देखो T4 - T3 देखो। सो T4 इज 2 -2, सो दैट गिव्स यू 2 + 2 विच इज 4 अगेन। अच्छा अभी हम लोग क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमको दिख रहा है कि तीनों भी जगह पे डिफरेंस क्या है, सेम है क्या अलग अलग है, सेम है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस द कॉमन डिफरेंस D equals to 4 equals to constant for any 2 consecutive terms, we can say the sequence is an AP। the sequence is an AP। अच्छा स्टूडेंट्स, खाली उन्होंने यही पूछा था कि सीक्वेंस एपी है या नहीं, उन्होंने क्या पूछा था, एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो वो भी लिखना है आपको। तो सीक्वेंस इज एन एपी आपने लिखा, एंड द कॉमन डिफरेंस D इज 4, दोनों आपको लिखना है। अगर उसमें से आपने एक भी मिस किया तो आधा मार्क चला जाएगा आपका, ध्यान रखना। So maybe I can say half mark for here and half mark for this statement with the working। Yes students, question number 2 है एकदम सिंपलेस्ट वन। इसका तो 2 मार्क किधर जाएगा ही नहीं आपका, आधा मार्क का बॉक्स भरना है। 4th का स्टूडेंट भी सॉल्व कर लेगा आराम से। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन क्या है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर 10x² + 10x + 1 = 0। अगर बॉक्सेस भरना है, क्या दिया है, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। a क्या है, a is 10 and b is 10 and c is 1। अभी यू नो दैट सम ऑफ द रूट्स क्या है, -b अपॉन a। -b क्या है, -b मतलब -10 हो जाएगा। सो विल राइट ये -10 अपॉन a इज व्हाट 10। नाउ 10 अपॉन -10 कैंसिल करने आती -1 हो जाएगा। अच्छा अल्फा इंटू बीटा,
अल्फा इंटू बीटा क्या है, जैसे सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी बाई ए, वैसे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज सी बाई ए. So c upon a, what is c? c is 1 and a is 10. So this is going to be 1 upon 10. So this is half mark one box, half marks per box, and there will be 2 marks. एकदम easy. So students, question number 2a का second sum. Again boxes ही भरना है, ये तो सबसे simplest है ये. Frequency आपको पता है, cumulative frequency आप सबसे पहले क्या करेंगे, वही लिखेंगे जो यहाँ पे है. So your what you get is 32, 8 to 9, 9 to 10, उसके बाद में 11 to 12, क्या बीच में क्या बचेगा, 10 to 11 ऑफ कोर्स. फिर यहाँ पे 186 प्लस 44 करना है, ये 4 इधर तो 190 हो गया, 190 प्लस 40 इज 230. आप इधर भी देख सकते हो, देखो 230. एंड देन ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, उधर से आप देख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे देखो 44, 44, 20, 20, यहाँ पे क्या 15 आ जाएगा. सेम थिंग, हाफ मार्क पर बॉक्स, 4 बॉक्सेस से 2 मार्क मिल जाएगा आपको. सो ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द थर्ड सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 2a. क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ 5x plus 2y 16, you have to find the value of y when x equals to 0 and you have to find the value of x when y equals to 3. सो एक ही इक्वेशन दिया है. सो यहाँ पे क्या है, यही देख के लिखना है आपको, दिमाग तो लगाना ही नहीं है. तो 5x आ गया यहाँ पे. नेक्स्ट बोला है when x equals to 0, फिर उन्हें सब लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है. y equals to 16/2, तो आप कट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 8 आएगा. अच्छा अभी देखो, उन्होंने बोला है when y equals to 3. अब ये जो इक्वेशन दिया वही लिखना है ना आपको यहाँ पे. 5x plus 2y है, सो y का वैल्यू 3 दिया है, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 into 3. नेक्स्ट पे 6 आ रहा है, बराबर है, ठीक है. एंड देन x equals to 10/5 which will be 2. 4 बॉक्सेस भर दिया आपने, हाफ मार्क ईच, 2 मार्क मिल गया. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2b, द फर्स्ट वन, द फेसेस ऑफ अ die bear the numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5. If a die is rolled twice, then find the probability that the product of the digits on the upper face is 0. तो स्टूडेंट्स ये है ना एग्जैक्टली अपना जो नॉर्मल डाइस अपन लूडो खेलते हैं ना, तो उसमें कैसा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है. अभी उन्होंने थोड़ा सा सम घुमा दिया है, वो 6 के जगह पे 0 लिख दिया है. तो यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5 तो है देखो, लेकिन उसके 6 के पे 0 आ गया है. तो हम लोग जैसा 2 डाइस वाला सम्स करते हैं ना, 1,1, 1,2, वैसे हमको करना है विद दिस. बट आई टेल यू वेरी नाइस टेक्निक, गड़बड़ नहीं होएगा उससे. आप क्या करो, 2 डाइस बोला है ना, तो पहले डाइस पे क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5 है. दूसरे डाइस पे भी क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5 है. आप 2 डाइस एक साथ उड़ा रहे हो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में सैंपल स्पेस S विल बी व्हाट, ये 0 से स्टार्ट करो पहले. 0, 0 आ जाएगा, 0, 1 आएगा, 0, 2 आएगा, ऐसा सब कवर करना है. 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 एंड देन लास्ट में 0, 5. बराबर, ये 0 हो गया. फिर अभी स्टार्ट विथ 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. 1 भी चला गया. फिर स्टार्ट विथ दिस 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Then start with 3, 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4 and then 3, 5. Then start with 4, 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 and then you have 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 and then 5, 5. So ऐसे करके आपको आ गया, कितना ऑप्शंस हो गया, ये n of s is 36. Now n of s is 36. अभी उन्होंने क्या बोला है, किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, आपको बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 0. मतलब ये 2 डिजिट्स दिया है, बराबर. ऐसा कितना, ये 36 जो बॉक्सेस है ना, इसमें कितने बॉक्सेस में आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ रहा है आंसर. अभी देखो ये 1, ये दोनों मल्टीप्लाई किया, 1 into 1 0 आता है क्या, नहीं, तो ये नहीं लेना है, ये लेना है. हाँ,
जिधर भी 0 दिखेगा वो लेना है, मतलब इन शॉर्ट. सो वी विल टेक दैट क्विकली. सो क्या लिखेंगे हम लोग, जो भी जिसका भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है आपको, उसको हम लोग लिखेंगे, इवेंट बना लेंगे. सो हम लोग लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट दैट product of the digits is 0. Product of the digits on the upper face is 0. So कौन सा बॉक्सेस आएगा आपको अपने को देखना है. ये 0 अलग सब आ जाएगा स्टार्टिंग का, 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, ये सब आ जाएगा. एंड फिर ये आएगा 1,0, 2,0, 3,0, 4,0 एंड देन 5,0. कितना हो गया ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया. एन ऑफ ए इज 11. सो 36 ऑप्शंस में से 11 ऑप्शंस में हमारा ये टर्म्स में प्रोडक्ट 0 आ रहा है. तो हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इस फॉर्मूला के हिसाब से एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, दैट विल गिव यू 11 अपॉन 36. एंड देन एट द एंड फाइनल स्टेटमेंट लिखना भूलना मत. फाइनल प्रोबेबिलिटी बोला है ना, therefore probability that the product of the digits on the upper face is 0 is 11 by 36. I am saving time, आप लोग डॉट डॉट मत लिखना, पूरा सेंटेंस लिखना एग्जाम में, राइट. सो दिस इज द फाइनल स्टेटमेंट, ये भूलना मत. सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2b 2 मार्क वाला सम है. सेकेंड सम क्या बोला है, द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250. In the natural numbers from 10 to 250, how many are divisible by 4? So 10 से लेके 250 के बीच में से कितने नंबर से जो 4 के टेबल में आते हैं. तो भी आप खुद ही चेक कर लो. 10, 4 के टेबल में 10 आता है क्या? नहीं. Which is the next number? 12. 12 के बाद में क्या होएगा? 4 का डिफरेंस रहेगा, ऑब्वियसली 12 रहेगा, 16 आएगा, 20 आएगा एंड सो ऑन. सो पहले हम लोग वो लिख देते हैं, the numbers between 10 and 250 divisible by 4 are 12, then 16, 20. ऐसे करके स्टूडेंट्स 250 तो नहीं आता है, 240 आता है. 4 6 24, तो 240 का में आएगा, 244 आएगा, 248 आएगा, 252 आएगा उसके अंदर डायरेक्टली. बट 250 तक हमको स्टॉप करना है तो यहाँ पे आके रुक जाएगा ये. सो क्या कैन आई से दिस इज एन एपी? यस, द अबव सीक्वेंस इज एन एपी, क्योंकि 4 का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कांस्टेंट है तो उसको एपी बोलते हैं हम लोग. अब हमको क्या करना है, हमको इसमें फाइंड करना है, एन फाइंड करना है. सो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हियर द फर्स्ट टर्म ए इज 12, the common difference d is 4 and the nth term is what? 248. Now formula, what's the formula? The formula for nth term is Tn equals to a plus n minus 1 into d. Now Tn we know is 248, it is a is 12 plus n minus 1 into 4. अब स्टूडेंट्स 12 इधर आके माइनस करेगा तो क्या हो जाएगा? 248 minus 12 equals to n minus 1 into 4. और 248 minus 12 कितना होता है? 236 हो गया. इट इज n minus 1. अभी इंटू 4 है ना स्टूडेंट्स, इंटू 4 इधर आए तो क्या डिवाइड बाई 4 हो जाएगा वो. देन 4 5 are 20 and 4 9 are 36. माइनस 1 इधर आए तो प्लस 1 हो जाएगा. 59 plus 1 equals to n. So I can say therefore n equals to 60. सो फाइनली एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा. क्या लिखना पड़ेगा? द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4. तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर there are 60 numbers from 10 to 250 divisible by 4. ओके, ये फाइनल सेंटेंस लिखना भूलना मत. डोंट जस्ट राइट n इक्वल्स टू 60.
वो 2 मार्क पूरा मिल जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स क्या बोला यहाँ पे, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द रिस्ट वॉच बेल्ट इज ₹586। नाउ 586 इसका टैक्सेबल वैल्यू है, ये रुपीज लिखा हुआ है, और उसमें जीएसटी 18% है। तो भैया हमको पता है कि जीएसटी किस पे लगता है, जीएसटी कभी भी टैक्सेबल वैल्यू पे लगता है। सो क्या बोला है, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू कितना है, टैक्सेबल वैल्यू गिवन इज ₹586। नाउ जीएसटी at the rate of 18% is what we can say on taxable value is what it is 18% of 586, मतलब हम लिखेंगे 18/100 into 586। सबको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 18 into 586 कितना आ रहा है वो देख लो फटाफट। 586 into 18, 6 are 48, 64 and 68, maybe 586. So students it's coming to 10548, लेकिन डिवाइड बाय 100 है ना वो, तो हो जाएगा 105.48। ये हो गया जीएसटी। हमको पूछा गया था व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। Price of the belt for the customer, it is equal to taxable value plus GST. So taxable value है 586 plus GST is 105.48. So 0.48 यहाँ पे आ गया, and 5 plus 6 11, 1 carry 1 9, so this is 691.48. तो ये फाइनल आंसर हो गया। और आप लिख सकते हैं प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर इज दिस, प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर इज ₹691.48। कैलकुलेशन बराबर से करना, गड़बड़ मत करना। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, हमको फॉर्मूला मेथड से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, comparing the given equation x square plus 6x plus 5 equals to 0 with ax square plus bx plus c equals to 0, what do we get? We can say we get a equals to 1, b equals to 6 and c equals to 5. अब फॉर्मूला मेथड हमको डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड करना पड़ता है, तो हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट that is delta is b square minus 4ac, so that gives you 6 square minus 4 into 1 into 5. Now 6 square is 36 minus 20, that gives you 16. So now by formula what you can say, you can say x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac the whole upon 2a. So that will give you minus 6 plus or minus root of b square minus 4ac वाले हमने निकाला है स्टूडेंट्स, वो क्या है 16 है, the whole upon 2 into 1. So we can say x equals to minus 6 plus or minus, we know root 16 is 4 the whole upon 2. So then x equals to minus 6 plus or minus 4 मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्लस 4, और सेकेंड आपको लिखना पड़ेगा minus 4. So x equals to minus 2/2 or x equals to minus 10/2. So finally what you get is x equals to minus 1 or x equals to minus 5. Therefore हम लोग लिख सकते हैं minus 1, 5 are the roots of the given quadratic equation. I want to finish off the paper faster, so थोड़ा handwriting fast लेकर आऊँ मैं, आप लोग एग्जाम में ठीक से लिखो and keep an eye on the time as well. So
So students, question number 2b, this is the fifth sum. You have to find the median. तो मीडियन का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग. Now we know that median is equal to L plus n upon 2 minus CF into H upon F. तो यहाँ पे देखो सब वैल्यूज देके रखा है स्टूडेंट्स. L means they have given 300, the lower limit. n upon 2 जिन्होंने देके रखा है 250. Minus cumulative frequency of the previous class is 215. You just have to substitute the values, students. H they have given is 75 upon frequency 105. So 300 plus, when you subtract 215 from 250, you get 35. ये cancel करके 75 और 105 cancel कर सकते हैं हम लोग. 15 5 are 75 and 15 7s are. So what you have here is 5 by 7. So sorry, can we cancel this? Of course, 7 1s are 7 5s are. So 5 5s are 25. So 300 plus 25 gives us 325. So you can say that the median is 325. Pretty simple, isn't it? For 2 marks? Yes, it is. Question number 3 एक्टिविटी वाला सम है, but we'll quickly understand this question. अगर एक मैन्युफैक्चरर ने साइकिल बेचा है फॉर अ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 8,000 रुपीज, मतलब मैन्युफैक्चरर साइकिल बेच रहा है, टैक्सेबल वैल्यू 8,000 रुपए है. मैन्युफैक्चरर किसको देता है? होलसेलर को देता है. होलसेलर किसको देता है? रिटेलर को बेचता है. रिटेलर किधर बेचता है? कस्टमर को बेचता है. तो ये ऐसा चेन है. तो मैन्युफैक्चरर बेचता है 8,000 प्लस जीएसटी पे, टैक्सेबल वैल्यू 8,000, उस पे ऊपर जीएसटी चार्ज करेगा. होलसेलर क्या करता है? होलसेलर रिटेलर को बेचता है एट व्हाट रेट? नाउ दिस इज द टैक्सेबल वैल्यू 9,600. रिटेलर क्या करता है? कस्टमर को बेचता है 10,400. और पूरे ट्रांजैक्शंस में जीएसटी रेट कितना है? 12% है. अभी आपको क्या करना है? आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करके फाइंड आउट करना है कि सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी कितना है एंड स्टेट जीएसटी कितना है एट ईच स्टेज ऑफ ट्रेडिंग. उन्होंने बोला है हर एक स्टेज पे आपको बताना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर का टैक्सेबल वैल्यू था मैन्युफैक्चरर के लिए 8,000 रुपये एंड 12% जीएसटी. नाउ ही इज सेलिंग इट टू होम, वो आपको लिखना है ही इज सेलिंग इट टू होलसेलर. सो विल राइट हियर होलसेलर. नाउ उसने होलसेलर को बेचा. भी होलसेलर क्या कर रहा है? होलसेलर बेच रहा है 9,600 में, दैट्स द टैक्सेबल वैल्यू फॉर द होलसेलर. फिर 12% जीएसटी चार्ज कर रहा है. वो किसको बेच रहा है? वो ही इज सेलिंग इट टू रिटेलर. और रिटेलर क्या कर रहा है? 10,400 टैक्सेबल वैल्यू हो गया उसके लिए, वो 12% चार्ज करके कस्टमर को बेच रहा है. ना आउटपुट टैक्स फॉर द मैन्युफैक्चरर, मतलब मैन्युफैक्चरर जो टैक्स सामने वाले से लेने वाला है कितना? 12% ऑफ 8,000 मतलब 12 अपॉन 100 इंटू 8,000, वो आपको करना है. तो क्या हो रहा है? ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 0 कैंसिल हुआ तो आपको है 12 8 96 960, राइट? हाँ, अभी जीएसटी पेबल में मैन्युफैक्चरर कितना है? ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट चेन है. तो पूरा 960 वो मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है? जीएसटी भर रहा है. अभी देखो होलसेलर के लिए क्या है? होलसेलर के लिए होलसेलर कितना जीएसटी भरने वाला है? व्हाट इज द आउटपुट टैक्स फॉर द होलसेलर? 12% ऑफ 9,600. इफ यू लुक एट दिस, होलसेलर इज सेलिंग द साइकिल टू द रिटेलर फॉर 9,600. तो टैक्सेबल वैल्यू होगा 9,600, तो उसका आउटपुट टैक्स निकालते हैं. सो दैट इज 12 अपॉन 100 इंटू 9,600. सो अब चेक करके देखो. 12 6 72 कैरी 7, 12 9 108 एंड देन 115 1152 हो गया बराबर. अब यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, हाउ मच इज द जीएसटी पेएबल बाय द होलसेलर. भी होलसेलर ऐसा डबल जीएसटी तो भरेगा नहीं. आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स आपको उसको करना पड़ेगा. अभी उसने जो साइकिल खरीदा है कितने में खरीदा था? 9,600. उसमें ऑलरेडी जीएसटी था पहले का. तो क्या करना पड़ता है? व्हाट इज द एक्चुअल जीएसटी पेएबल बाय द होलसेलर? इट इज द आउटपुट टैक्स, वो टैक्स जो भर रहा है माइनस पहले का जो जीएसटी आईटीसी है उसके पास, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं उसको.
सो 1152 अभी का जीएसटी हुआ, लेकिन उससे पहले का कितना भरा हुआ था, 960 भरा हुआ था, तो ये हो गया। तो 1152 माइनस 960 करना है 192, तो उन्होंने ऑलरेडी देके रखा है। आगे देखो अभी, व्हाट इज आउटपुट टैक्स फॉर द रिटेलर, 12% ऑफ 10,400, कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 12 अपॉन 100 इंटू 10,400 कितना होता है ये, यू विल कैंसिल दिस 2 zeros and you have 12 fours are 48, carry 4 and 12 ones are 12, so it's 1,248. so अभी जीएसटी पेबल कितना है, अभी का टैक्स निकालो माइनस इनपुट टैक्स, तो ये आता है 1248 आता है माइनस 1152 आएगा, 1152, दैट गिव्स यू 96 रुपीज। सो 6 बॉक्सेस हो गए हमारा, 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस, यस। बाकी ये सब उन्होंने देके रखा है टेबल कंप्लीट करने के लिए, सो उसका जरूरत नहीं है हमको। ओके स्टूडेंट्स, अगेन द एक्टिविटी सम, क्वेश्चन नंबर 3B 3A, आई एम सॉरी, सेकंड सम। अभी क्या बोला है इसमें, द क्वेश्चन गिवन इज द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 25 एंड द डिफरेंस बिटवीन देम इज 15। सो बोल के रखा है लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है, दे हैव सेड द सम इज 25, तो ऐड करके कितना आंसर आना चाहिए, 25, इजी। दूसरा सेकंड कंडीशन क्या बोला है, द डिफरेंस इज 15, सो x उसमें बड़ा नंबर है ना, तो डिफरेंस मतलब माइनस करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, x माइनस वाई इज हाउ मच, 15। अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस आपको x और y का वैल्यू ऐड करना है, x और y का वैल्यू निकालना है, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे हम लोग। एडिंग द इक्वेशंस व्हाट डू वी गेट, यू कैंसिल दिस प्लस x माइनस x, आई एम सॉरी प्लस y माइनस y आप कैंसिल कर देंगे, 2x इज 40, x इक्वल टू 40 अपॉन 2, सो वेरी सिंपल, क्या आ रहा है आंसर इधर, 20, 40 अपॉन 2 20। फिर बाद में बोला x प्लस वाई इज 25, नाउ दे हैव सेड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 20, तो 20 आप लिखेंगे x के यहाँ पे, 20 प्लस वाई इज 25, फाइनली आंसर आ गया। द ग्रेटर नंबर इज, x वॉज अ ग्रेटर नंबर, तो x इज 20 एंड द स्मॉलर नंबर इज 5। 6 बॉक्सेस हो गया, देखना है आपको, 1 2 3 4 5 6, बॉक्स करना भूलो मत, बहुत बार बच्चे बॉक्स करना भूल जाते हैं, राइट। सो 3 मार्क बोनस मिल गया आपको ये। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3B है, दिस इज कैरिंग 3 मार्क्स। सो दिस इज अबाउट शेयर्स, I'll read the question quickly. Mr. Ansari invests rupees 4,800 in shares of a company which was paying 80% dividend at the time when a rupees 100 share cost rupees 160. So सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करना है हमको, उन्होंने बोला है उनका एनुअल इनकम निकालो, शेयर्स में कितना उनको कमाई हो रहा है, एंड दूसरा उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, उनको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है कितना। सो सबसे पहला स्टूडेंट्स इसका 2-3 स्टेप्स आप याद रखो। सबसे पहले आपको देखने के कितना नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास है। सो नंबर ऑफ शेयर्स पहले हम निकालेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज ऑलवेज द टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन द मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। सो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया उन्होंने, 4,800 किया है, और एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना था, 100 रुपये का शेयर, 100 रुपये फेस वैल्यू है, और मार्केट वैल्यू उसका था 160, तो कितना हो रहा है ये। सो इफ यू कैंसिल दिस 16 3 48, एक 0 कट हो जाएगा, सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स में रुपीज़ नहीं आएगा, 30 आएगा ये। सो कितना शेयर्स उसने खरीदा, 30 शेयर्स उसने खरीदा। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था, उनका शेयर से कितना कमाई हुआ, ओके। तो डिविडेंड क्या बोला है, डिविडेंड एनुअल इनकम बोला है ना शेयर से, द एनुअल इनकम मतलब आपको डिविडेंड ही चाहिए उनको, टोटल डिविडेंड। डिविडेंड कितना मिला है, डिविडेंड इज 8%, 8% of the total value of shares. So 8%, 8 upon 100. Now what is the total value of shares? 30 shares है और एक शेयर 100 रुपए का है. So number of shares into face value. So आप लिखेंगे 8 upon 100 into number of shares 30 into face value is 100. So can I cancel this 100? Yes, of course. You can cancel this 100. तो ऐसे करके हो जाएगा 240.
यूज दिस साइड, दैट्स ₹240. ये डिविडेंड इनकम हो गया. तो हम लोग लिख सकते हैं लास्ट में therefore annual income from shares is ₹240. इसका और एक तरीका है, आप उसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक शेयर से उसने कितना अर्न किया. एक शेयर से इज अर्निंग ₹8 बिकॉज डिविडेंड इज ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू. ₹8 एक से शेयर से अर्न किया तो 30 शेयर से 240, वैसा भी लिख सकते हैं आप. ये हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या बोला, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गेटिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द एनुअल इनकम, मतलब कितना डिविडेंड अर्न किया है अपॉन द मनी इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड. आपको डायरेक्टली परसेंटेज में आ जाएगा आंसर. सो एनुअल इनकम कितना हुआ, ₹240. कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया था, उसने इन्वेस्ट किया था 4,800 इंटू 100. आपको डायरेक्टली आंसर परसेंटेज में आ जाएगा ये. So what's the answer you get, students? You cancel off this. 24 ones are 24 twos are 24 ones are 24 twos are, and then 10 upon 2 मतलब 2 ones are 2 5s are, so 5%. So हम लोग बोल सकते हैं the rate of interest, that is the return on investment, is 5%. I hope it's easy, students. ये भी हो सकता है 2 मार्क के लिए है, 1 मार्क इसके लिए रहेगा, 1 मार्क इसके लिए रहेगा, एंड दिस 1 मार्क हियर. So that way you get total 3 marks. Yes, okay. So we'll move on to the next sum, students. Easy sum है ये भी. This is about median. I have not written that the initial statement. उसमें लिखा है the distance covered by 250 public transport buses in a day is shown in the following frequency distribution table. You have to find the median. Find the median लिखा है. 250 buses बोला है. ये buses है. डिस्टेंस 200 से 210 किलोमीटर चलने वाला 40 बसेस है, यहाँ पे 60 बसेस है, एंड सो ऑन, ऐसे 250 है. आपको बोला फाइंड द मीडियन. और मीडियन का फॉर्मूला आपको पता है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीडियन? वी कैन से मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF इंटू H अपॉन F. द होल अपॉन F इधर भी लिख सकते हैं, द वे ऑफ राइटिंग. तो हम लोग एक एक करके देखते हैं. ये L मीन्स व्हाट, लोअर लिमिट फाइंड करना आपको मीडियन क्लास का. सो मीडियन क्लास के लिए सबसे पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए. ये 2 क्वेश्चंस में दिया था. आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे. नाउ व्हाई डू वी वांट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? टोटल 250 फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ बसेस इज 250. तो इसका एग्जैक्ट हाफ क्या होता है, 125. तो हमको देखना है 125 कहाँ पे आ रहा है. तो 40 बसेस इधर हो गया, 40 लिखा. 40 प्लस 60 कितना हो गया, 100 हो गया. 100 प्लस 80 कितना हो गया, 180. 180 प्लस 50 कितना हो गया, 230. एंड लास्ट में 230 प्लस 20 ये हो गया 250. सो वी आर कंसर्न अबाउट दिस नंबर्स. अभी हमको देखना है ये 125 नंबर कहाँ पे आ रहा है. 100 से लेके 180, 101 से लेके 180 तक ये यहाँ पे ये आ रहा है ना, ये क्लास में आ रहा है. सो दिस इज द मीडियन क्लास. So we can say this is the median class. So we want the lower limit of the median class. So lower limit of the median class is 220. So we can first initially say that median class is median class is 220 to 230. So यहाँ पे L क्या हो जाएगा, L will be 220. Next n upon 2 तुमको दिख जाएगा, n is 250. So n upon 2 equals to 250 upon 2, that will give you 125. Cumulative frequency of the previous class. So ये cumulative frequency हो गया of the previous class. फिर ये frequency of the median class हो गया. Cumulative frequency is 100.
frequency is 80 and h is 10, 210 minus 200. So ऐसा करिए, जब भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टूडेंट्स फटाफट, L is 220 plus n upon 2 means 125 minus cumulative frequency is 100 into h is 10 upon frequency is 80. So that will give us 220 plus 25 into 1 by 8. So 25 डिवाइड बाई 8 करना है स्टूडेंट्स. 25 डिवाइड बाई 8 कितना आता है देख लेते हैं क्विकली. 8 3 24, 8 1 8, 8 2 16 and 8 5 40. So it's 3.125. 3.125. So 223.125, which we can say as 223.13. So finally हम लोग बोल सकते हैं median of the distances is 223.13. Okay students, this is question number 3b, sum number 3. Now this is a sum of probability and a non-textual sum. थोड़ा ध्यान से आपको करना पड़ेगा. यहाँ पे क्या बोला है, a bag contains 5 red balls and some blue balls. 2 कलर का बॉल्स है यहाँ पे, 5 रेड बॉल्स है. ब्लू बॉल्स कितना है हमको पता नहीं, वो फाइंड करना है. सो क्वेश्चन में क्या बोला है, if the probability of drawing a blue ball is double of the probability of drawing a red ball, you have to find the number of blue balls in the bag. तो हम लोग बोलेंगे सबसे पहले जो भी फाइंड करना है उसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं. Let the number of blue balls in the bag be x. Number of red balls कितने हैं in the bag, we know is 5. So total balls in the bag कितना हो गया, it is x plus 5. अच्छा अभी इन्होंने क्या बोला है, according to the given condition, probability of drawing a blue ball, probability of drawing a blue ball is what? It is double of the probability of drawing a red ball. Now probability of drawing a blue ball क्या होगा, number of blue balls upon total number of balls. और यहाँ पे क्या होगा, 2 into, now what is the probability of red ball drawing a red ball? It is number of red balls upon total number of balls. यहाँ पे एक शॉर्टकट है, आप देखेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ पे सेम ही रहेगा. वी कैन कैंसिल ऑफ दिस. तो नेक्स्ट स्टेप में वो ध्यान रखना, शॉर्टकट. नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितना दिया है नहीं पता है हमको, x है. दिस विल बी x plus 5. इट इज इक्वल टू 2 into number of red balls is 5, we know. So 5 upon x plus 5. ना दोनों जगह पे कॉमन डिनोमिनेटर x plus 5, so we can cancel it off. बहुत बार मॉडल आंसर्स में क्या है, इसको कैंसिल नहीं करते एंड अननेसेसरी लेंदी आंसर आ जाता है. So finally what we can say here is x equals to 2 into 5. So x equals to 2 into 5, so x equals to 10. And don't forget to write the final sentence, that is therefore the number of blue balls in the bag is 10. Right, so students don't forget to write this final answer in the form of a statement if you want to get full 40 out of 40. So question number 3b, this is the fourth sum. क्या बोला इसमें, प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's age 2 years ago and 3 years hence is 84. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन करना है, दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है. पहला टर्म क्या है? इट इज प्रगति's age 2 years पहले का. सेकेंड टर्म क्या है? प्रगति's age 3 years बाद में का. और बोला है फाइंड द प्रेजेंट एज. तो सुन, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीज पूछा है उसको एक्स एज्यूम करते हैं. तो हम लोग एज्यूम करेंगे लेट प्रगति's प्रेजेंट एज बी x years. ओके, फिर क्या बोला है? प्रगति's age 2 years ago, her age 2 years ago will be what? X minus 2, of course. Her age 3 years hence will be x plus 3. अब क्या बोला? According to the given condition, we can say that the product of this is equal to 84. So I can say x minus 2 into x plus 3 equals to 84. So multiply this. X into x is x squared, x into 3 is 3x, minus 2 into x is minus 2x, and minus 6. It is equal to 84. So what you have is x squared plus x minus 6 minus 84 equals to 0. So you have x squared plus x minus 90 equals to 0. अब सुन, आपको सम प्रोडक्ट का रूल पता है. आपको दो नंबर्स चाहिए, ऐड करके +1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके -90 आना चाहिए. तो ब्रेक द नंबर्स, यू गेट 10 9s. बड़ा नंबर को मिडिल नंबर का साइन दे देने का इधर. सो द नंबर्स आर 10 and -9. So we can write here x square plus 10x minus 9x minus 90 equals to 0. आप ग्रुपिंग कर लो इसको. तो when you will do the grouping, आपको आ जाएगा 10 x into x plus 10 minus 9 into x plus 10, it is equal to 0. आप x plus 10 को कॉमन ले सकते हो. आप x plus 10 को कॉमन ले लोगे तो आपको बाद में आएगा x minus 9 equals to 0. Then either x plus 10 is 0. Therefore x equals to -10 हो जाएगा, और x minus 9 equals to 0, in which case x equals to 9 हो जाएगा. But age can't be negative, therefore -10 डिस्कार्ड करना पड़ेगा. But age can't be negative, therefore x equals to -10 is discarded, और ignored बोल सकते हो आप. Therefore x equals to 9. And again final answer in the form of a statement. Therefore Pragati's present age is 9 years. I want to finish off this faster, so थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ मैं. आप एग्जाम में थोड़ा अच्छा ऐसे लिखो. तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या है? स्टूडेंट्स वर, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा. स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग इन रोज फॉर पीटी एक्सरसाइज. If 4 students were less in each row, 10 more rows were required, and if 5 students were more in each row, then the number of rows reduced by 8. You have to find the number of students. तो स्टूडेंट्स, देखो रोज एंड कॉलम्स वाला सम है, अपने पहले भी टेक्सचुअल सम है ऐसा एक सिमिलर टाइप का. तो अभी सपोज इसमें ये हो गया रोज. अभी सपोज ऐसे यहाँ पे 10 लोग हैं एंड यहाँ पे ऐसा 4 है. तो 10 10 10 10 ऐसे टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे, आप बोलेंगे सर 10 into 4 मतलब 40. तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच कॉलम. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए दो चीज है. हम लोग बोलेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in each row be x and the number of students in each column be y. Therefore the total number of students will be x into y, that is xy. ये total number of students हो गया. अब फर्स्ट कंडीशन क्या है? लेट्स सी द फर्स्ट कंडीशन.
फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, अगर एक रो में 4 बच्चे कम है तो पहला नंबर ऑफ रोज कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितना है, x। तो अगर 4 बच्चे कम है तो वो हो जाएगा x माइनस 4। अगर 4 बच्चे एक रो में कम है तो 10 रोज ज्यादा लगेगा। सो यू कैन से y प्लस 10 कितना हो जाएगा, इट इज टोटल स्टूडेंट्स, मतलब वो xy हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। इफ 4 स्टूडेंट्स वर लेस इन ईच रो 10 मोर रोज वर रिक्वायर्ड। सो ये कॉलम है, बट आपका वर्डिंग्स के हिसाब से आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो हो गया और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हो गया। एक्चुअली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच कॉलम मतलब नंबर ऑफ रोज ये है। तो जो यहाँ पे लैंग्वेज लिखा है वो यहाँ पे हमको लैंग्वेज लिखना है। अगर उन्होंने कॉलम वर्ड स्पेसिफाई किया तो हम यहाँ पे वही कॉलम लिखते थे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज लिखा है, नंबर ऑफ रोज कर देते हैं हम लोग। सो जस्ट अब इसको मल्टीप्लाई करो आप लोग। x इंटू वाई इज एक्स वाई, एक्स इंटू 10 इज 10x, माइनस 4 इंटू वाई इज माइनस 4y, माइनस 40 इट इज इक्वल टू एक्स वाई। स्टूडेंट्स एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। बहुत लोग देख के एक्स वाई देख के डर जाते हैं, बोला अरे सर एक्स वाई कहाँ है, कहाँ पे आएगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में। डोंट वरी, ये एक्स वाई यहाँ पे कट हो जाता है। सो व्हाट यू हैव हियर इज 10x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 40 उधर गया तो प्लस 40 हो जाएगा। डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 20। सो वी कैन कीप दिस एज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकंड कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में सिमिलर टाइप का होगा। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, इफ 5 स्टूडेंट्स वर मोर इन ईच रो, अगर एक ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक हर एक रो में 5 अगर बढ़ गए, पहला x था अगर 5 बढ़ गए x प्लस 5 हो गया, तो देन द नंबर ऑफ रोज वुड बी रिड्यूस्ड बाय 8। नंबर ऑफ रोज कितना है, y था ना, तो 8 कम हो जाएगा वो। दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स वाई। इसको मल्टीप्लाई करो, x इंटू वाई इज एक्स वाई माइनस 8x प्लस 5y माइनस 40 इट इज इक्वल टू एक्स वाई। xy will get cancelled. Now what you have is minus 8x plus 5y minus 8x plus 5y it is equal to 40. So this is equation number 2. अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, ऐसे तो कट होने वाला नहीं है, ना तो x कट होगा ना y कट होगा, हमको सेम करना पड़ेगा। तो वी कैन मल्टीप्लाई दिस बाय 1 को, इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड इक्वेशन 2 को ये 5 2 से 10 करना है ना, तो इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। So let's see what we get. So when we multiply this one by 5, we get 25x minus 10y. 25x minus 10y, it is equal to 25 is 100. We can keep this as equation number 3. And इसको अगर जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो minus 16x plus 10y इक्वल टू डबल करना है इसका, 40 का डबल 80 हो गया। विल कीप दिस एज इक्वेशन नंबर 4। अभी माइनस 10y प्लस 10y है तो वी जस्ट हैव टू ऐड द इक्वेशंस। 3 प्लस 4 अगर ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमको, माइनस 10y प्लस 10y विल गेट कैंसल्ड एंड 26 minus 16 is 9. So what you get is 9x equals to 180. 9x equals to 180. So x equals to 180 upon 9, that is 20. फिर हम लोग बोल सकते हैं substituting x equals to 20 in equation number 1. What is equation number 1? 5x minus 2y. 5x minus 2y is 20. जहाँ x है वहाँ पे हम 20 लिखेंगे
minus 2y is 20. So 100 minus 20 minus 2 उधर गए तो plus 2y हो जाएगा. 80 equals to 2y, so y equals to 40. Now what they had asked students, find the number of students. So number of students हम क्या लिखेंगे? Number of students is equal to x into y. So that will give us 20 into 40, that is 800. Therefore there are 800 students. Okay students, here this is a very nice sum, interesting sum. What it says, Raghav buys a shop for rupees 1,20,000. He pays half of the amount in cash and agrees to pay the balance in 12 annual installments of 5,000 each. If the rate of interest is 12% and he pays with the installment, the interest due on the unpaid amount, find the total cost of the shop. अब एक आदमी राघव है, वो क्या करता है, एक शॉप खरीदता है 1,20,000 में, और वो क्या बोलता है, आधा पैसा मैं कैश दे दूंगा. He pays half the amount in cash, मतलब कितना कैश में भरा है, amount paid in cash, amount paid in cash is half of the total amount. It is half of 1,20,000. कितना? 60,000, राइट? 60,000 उसने क्या किया, कैश में भर दिया. अच्छा, नेक्स्ट क्या है फिर? एंड ही एग्रीज, वो बोलता है कि बाकी का पैसा में बैलेंस कितना बच गया, 1,20,000 में से 60,000 उसने कैश भरा, तो बाकी बैलेंस कितना बचा, बैलेंस है 60,000. बैलेंस इज इक्वल टू 1,20,000 माइनस 60,000. वो कितना हो गया, 60,000. बैलेंस 60,000 वो कैसे भरने वाला है, 12 इंस्टॉलमेंट्स में भरने वाला है वो. तो इसको डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 5,000 का इंस्टॉलमेंट्स आ जाएगा, बराबर. लेकिन कैसे भरने वाला है वो, 5,000 हर साल भरेगा वो, एवरी ईयर. आज 5,000, फिर उसका अगले साल 5,000 और अगले साल 5,000, ऐसे 12 साल उसको लगने वाला है पेमेंट करने के लिए 60,000. तो उसका इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्या, ऑफकोर्स इंटरेस्ट लगेगा. तो क्या बोला है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% एंड ही पेज, राघव पेज विद द इंस्टॉलमेंट के 5,000 का जो इंस्टॉलमेंट देगा ना, उसके साथ में क्या भर रहा है वो, एंड ही पेज विद द इंस्टॉलमेंट द इंटरेस्ट ड्यू ऑन द अनपेड अमाउंट. अभी देखो, एक साल के बाद में क्या करेगा वो, अभी 60,000 भर दिया, अगले साल क्या भरेगा, एक साल के बाद में 5,000 भरने वाला है वो. बाकी कितना था, बाकी 60,000 था, तो 60,000 का 12% कितना आता है वो भरेगा 5,000 के साथ में. उसके अगले साल क्या होगा, कितना बैलेंस रहेगा, 55,000 बैलेंस रहेगा, तो 55,000 का 12% कितना आता है वो भरेगा. उसके अगले साल 50,000 बचेगा, 50,000 का 12%. तो ऐसा इंटरेस्ट स्टेबल नहीं, इंटरेस्ट कम 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 होते जाएगा. कम कम क्यों होते जाएगा, क्योंकि अमाउंट भी कम होते जा रहा है ना. ये सिंपल इंटरेस्ट की तरह नहीं है, इंटरेस्टिंग है. दिस इज एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो अभी आपको क्या ध्यान देना है, वो टेबल एक थोड़ा सा एक रफ टेबल हम लोग बना लेते हैं. एक हम लोग 5,000 भरना है, बैलेंस ड्यू कितना है, बैलेंस है 60,000. इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है, 5,000. interest will be 12% of 60,000. नेक्स्ट बैलेंस कितना हो जाएगा, 55,000. इंस्टॉलमेंट इज 5,000, तो 12% ऑफ 55,000 विल पे. ऐसा कहाँ तक चलेगा स्टूडेंट्स ये, तो 60,000, 55,000, 50,000 हो जाएगा. फिफ्थ इंस्टॉलमेंट विल बी 40,000. फिफ्थ इंस्टॉलमेंट हो जाएगा उसका 40,000 का. सेवन्थ इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 30,000 का. नाइन्थ इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 20,000 का. 11th इंस्टॉलमेंट हो जाएगा
10,000 का, और वो 12th इंस्टॉलमेंट जो 5,000 बचेगा वो, और ख़त्म. So this is the 12th installment of 5,000. So students, ये AP का सम आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो. You can either add this 5,000 along with this, or you can keep that separate. बहुत सॉल्यूशन बुक्स में 5,000 प्लस ये ऐड कर देते हैं. So let's see how the payment will be done. आपको बोलना है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द शॉप. 1,20,000 तो उसका प्राइस था, बट उसे इंटरेस्ट भी दिया ना इतना 12 साल में, तो 12 साल में इंटरेस्ट कितना दिया वो कैलकुलेट करना है आपको, तो उतना कॉस्ट बढ़ जाएगा. सपोज उसे 30,000 इंटरेस्ट भरा, तो कॉस्ट ऑफ द शॉप विल बी 1,20,000 प्लस इंटरेस्ट 30,000, दैट इज 1,50,000. तो आपको इंटरेस्ट निकालना है वो. सो कैन आई से दैट वी आर मोर कंसर्न विद द इंटरेस्ट पार्ट. So we can say that the interest paid is in AP, arithmetic progression. कैसा देखो, 12% of 60,000 plus 12% of 55,000, ऐसा करके चल रहा है वो 12% of 5,000. अब सुन, व्हाट इज कॉमन हियर, ये 1,000 तो कॉमन दिख रहा है मुझे. सो 12% ऑफ 1,000 ले लेते हैं कॉमन. अंदर क्या आ रहा है, 60 प्लस 55 प्लस 50, ऐसा करके लास्ट में आएगा 5. सो आई कैन से दिस इज द total interest payable. Now total interest payable is this. अब ये क्या है स्टूडेंट, ये 60, 55, 50, ये 5 तक क्या है, दिस इज इन AP, राइट. एक काम करते हैं, इसको विल जस्ट कीप दिस एज 1. नाउ 60, 55, 50 till 5, this is an AP. Here A equals to 60, difference equals to -5, and this TN is 5. हम लोग क्या करना है स्टूडेंट, पहले n फाइंड कर लेते. So TN equals to A plus n minus 1 into D. I can say 5 equals to 60 plus n minus 1 into D is -5. Now 5 minus 60 will give you -55. It is equal to n minus 1 upon -5. -5 इधर आ जाएगा तो डिवाइड करेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड करेगा, ये 11 हो जाएगा. n equals to 12. You could have directly taken शायद n equals to 12, 12 इंस्टॉलमेंट्स है. You know that n is 12, बट यहाँ पे कैलकुलेशन भी आ गया, n is 12. And now we will just find out Sn. Sn equals to n upon 2 into T1 plus Tn. S12 equals to 12 upon 2 into फर्स्ट टर्म क्या है 60 है, और लास्ट टर्म क्या है 5 है. सो S12 क्या हो रहा है, 6 into 65 हो रहा है ये. So therefore S12 is 6 5 is 30, carry 3, and this is 36 and 3 390. S12 is 390 हो रहा है. तो सुन, हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1 कर देते हैं. Substituting 2 in 1, we can say total interest payable, it is equal to 12% into 1000 into 390. So that is 12 upon 100 into 1000 into 390. ये 0 0 कट कर देते हैं हम लोग.
सो 12 इंटू 39 करते हैं. So 12 9 108, carry 10, 12 से 36 and 46, ये दो zeros. So it's 46,800. ये हो गया इंटरेस्ट. So लास्ट में क्या, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द शॉप. हम लोग बोलेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ द शॉप. टोटल कॉस्ट ऑफ द शॉप is rupees 1,20,000 plus the interest, which is equals to 1,20,000 plus 46,800. That will give us rupees 1,66,800. Okay students, so I have not copied the entire question there. The following table shows the information regarding the milk collected from farmers on a milk collection center and the content of fat in the milk measured by lactometer. काम का information नहीं है. अब बोला बाद में बोला find the mode, और ये टेबल काम का टेबल है. content of fat दिया है और ये milk collected in liters दिया है. अब आपको बोला find the mode बोला है. Now students, you know the formula for mode. क्या है mode formula? Mode is equal to L plus Fm minus F1 upon 2Fm minus F1 minus F2 into H. So उसमें ये L क्या है, Fm क्या है, F1 क्या है, वो देख लेते हैं. Now ये Fm is the frequency of the modal class. अभी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ दिख रहा है, 80 दिख रहा है. सो दिस बिकम्स द मॉडल क्लास. सो दिस इज द मॉडल क्लास एंड दिस इज Fm. उसके पहले वाला फ्रीक्वेंसी ये F1 हो गया, उसका नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी F2 हो गया. एंड देन लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज 4 एंड हाइट इज 3 minus 2, दैट इज 1. सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे हियर मॉडल क्लास is 4 to 5 since it has maximum frequency of 80. So L क्या, what is the lower limit of the modal class? That is 4. Fm, frequency of the modal class, is 80. F1 is 70. F2 is 60 and H is, I can say 3 minus 2, therefore H equals to 1. So what is L? We just have to substitute the values here. We'll just write here 4 Fm. Fm is 80 minus F1 is 70 upon 2 Fm. So 2 into 80 हो जाएगा वो. Minus F1 is 70 minus F2 is 60 and then into 1. So अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं वही वैल्यूज को आगे. 4 plus 80 minus 70 will give you 10. In the denominator it will give you 160 minus 70 minus 60 into 1, वो तो वैसे ही रहेगा. 4 plus 160 minus 60 तो 100 हो जाएगा. 100 minus 70 is 30. So this is 4 plus 0 0 कट हो जाएगा. ना 1/3 स्टूडेंट्स वी नो इज 0.3333 रिकरिंग चलते रहेगा वो. 0.3333 रिकरिंग. सो इट इज इक्वल टू 4.333 which we can say as 4.33. So what is the final sentence they had asked? Find the mode of the fat content. Mode of the fat content is 4.33.
Okay, students, this is one of the favorite sums of the board exams, the speed, distance and time. ये स्पीड डिस्टेंस टाइम का सम्स में ना स्टूडेंट्स आई जस्ट टेल यू वेरी नाइस ट्रायंगल मेथड, आपको कभी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा. आप खाली ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखो, ट्रायंगल शेप में बना के, एंड ये ऐसे ऑर्डर में लिखो. लेटर वाइज पहले डी आता है, बाद में एस आता है, बाद में टी आता है. इन दिस वे यू राइट. अभी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस को छुपा दो, बाजू बाजू में ना ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड का फॉर्मूला चाहिए, स्पीड को छुपा दो, ऊपर नीचे है ये. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो अभी ये क्वेश्चन में क्या, ये सब में क्या बोला है आपको? अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर विद सम स्पीड. 240 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है कार. अगर स्पीड उसका इंक्रीज कर दिया 20 किलोमीटर पर आवर से, तो ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा, 2 घंटा कम लगने वाला है. आपको बोला फाइंड द स्पीड ऑफ द कार. नाउ द बेस्ट मेथड ऑफ दिस ट्रायंगल, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल मेथड इज दैट कुछ भी पूछा रहेगा ना उसमें यू कैन पुट इन हियर फाइंड द स्पीड ऑफ द कार बोला है. लेट द स्पीड ऑफ द कार बी, लेट द स्पीड of the car be x kilometers per hour. हमने बोल दिया स्पीड ऑफ द कार इज x किलोमीटर्स पर आवर. भाई ये जो है यहाँ पे हमको स्पीड पता है, स्पीड क्या हो गया? x हो गया है. डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस 240 है. डिस्टेंस इज इक्वल टू 240 किलोमीटर्स. व्हाट विल बी टाइम? टाइम का फॉर्मूला क्या है? टाइम का फॉर्मूला भी नहीं वॉज डिस्टेंस अपॉन टाइम. इट वॉज डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 240 अपॉन एक्स हो जाएगा, उतना आवर्स हो जाएगा. सो फर्स्ट इज वेरी सिंपल. जो भी इंफॉर्मेशन दिया था हमको हमने वो लिख दिया, जो पूछा था उसको हमने एक्स एज्यूम किया. दिस वॉज गिवन एंड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी गॉट टाइम एज 240 अपॉन एक्स आवर्स. मतलब 240 डिस्टेंस कवर करने के लिए एक्स की स्पीड से आपको इतना टाइम लगेगा. 240 अपॉन एक्स. एक्स से फॉर एग्जाम्पल आपका 40 का स्पीड है कार का, तो 240 को कितना टाइम लगेगा? 240 डिवाइड बाई 40 करो, 6 घंटा लगेगा. अच्छा, अभी क्वेश्चन में क्या बोला है आगे? अगर स्पीड को 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया, सो विल से अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन व्हाट इज द न्यू स्पीड? हमने स्पीड को बढ़ाया ना स्टूडेंट्स. स्पीड को कितना किलोमीटर पर आवर बढ़ाया? 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया. स्पीड क्या था? x था, तो x को 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया, प्लस 20 कर दो इधर किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस तो वही है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस तो वही रहने वाला है. इफ यू वांट यू कैन जस्ट राइट द न्यू डिस्टेंस इज द सेम, दैट इज 240 किलोमीटर्स ओनली. न्यू स्पीड आपको मिल गया x प्लस 20, न्यू डिस्टेंस वही है. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला के हिसाब से न्यू टाइम क्या होगा? न्यू टाइम होगा न्यू स्पीड अपॉन न्यू डिस्टेंस. वो हो जाएगा, आई एम सो सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने. न्यू डिस्टेंस अपॉन न्यू स्पीड आएगा. New distance is the same thing, 240 upon new speed x plus 20. इतना आवर्स हो गया. सो अभी कंडीशन में क्या बोला है? अगर स्पीड आपने 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया, तो ये जो टाइम है ना 2 घंटा कम हो जाएगा, 2 घंटा कम लगेगा आपको ये डिस्टेंस कवर करने के लिए. सो कैन आई से दैट द न्यू टाइम इज 2 आवर्स लेस देन दिस ओरिजिनल टाइम? यस, new time is 2 hours less than the original time. The original time ज़्यादा है, this is more, so I can say this more minus less equals to 2. Therefore 240 upon x minus 240 upon x plus 20, it is equal to 2. This is the equation. अब हमको इक्वेशन को सॉल्व करना है, that's it. तो फटाफट हम लोग वो 240 कॉमन निकाल लेते हैं. लेक 240 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 20, इट इज इक्वल टू 2. और 240 वैसे ही रहने दो, अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यू विल गेट एक्स प्लस 20 माइनस एक्स होल अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 20.
इट इज इक्वल टू 2. सो 240, अभी x माइनस एक्स तो कट हो जाएगा, सो ऊपर आएगा इंटू 20 अपॉन x स्क्वायर प्लस 20x, इट इज इक्वल टू 2. नाउ यू गेट 240 इंटू 20 द होल अपॉन 2. ये 2 इधर के डिवाइड करेगा और ये यहाँ पे भेज देंगे हम लोग x स्क्वायर प्लस 20x. 1 ज़ा 10 ज़ा. दिस इज 2400. स्टूडेंट हमको इक्वेशन में क्या चाहिए होता है, दिस, ये सब साथ में चाहिए ना. सो 2400 इधर है तो माइनस 2400 हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 0. सो एक साथ लेफ्ट में लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2400 इक्वल्स टू 0. अब आई टेल यू सुपर शॉर्टकट, एक बहुत अच्छा मेथड आपको बताता हूँ मैं. क्या सम और प्रोडक्ट हमको ढूंढना है यहाँ पे, राइट. इसके बाद में सम होना चाहिए प्लस 20 एंड प्रोडक्ट होना चाहिए माइनस 2400. अब शॉर्टकट के हिसाब से आप क्या करना है मालूम है आपको, आप खाली इसमें का इधर से जो निकालेंगे ना, टेम्पररी कट करेंगे, इसका स्क्वायर कट कर दो. यहाँ से मैंने एक 0 निकाला, यहाँ से 2 0 निकाल देते हैं. यहाँ से मैंने 10 निकाला, यहाँ से मैंने 100 निकाला. अब बचा क्या, 2 और 24 बचा है ना, 2 एंड माइनस 24. फैक्टर्स निकालो, 6 4 24, बड़ा नंबर को प्लस साइन, मिडिल नंबर का साइन एंड यहाँ पे माइनस. अभी 10 निकाला था ना, यहाँ से 100 निकाला था, 100 मीन्स 10 इंटू 10, यहाँ पे 10 10 मल्टीप्लाई कर दो, वो बड़ा नंबर एकदम छोटा हो गया. फिर always, if you want details of this, you can always WhatsApp to me. You have the numbers. So plus 60 minus 40 हो गया. So you can say this is x square plus 60x minus 40x minus 2400 equals to 0. So here you have x into x plus 60 minus 40 into x plus 60 is 0. And then finally what you get here is x plus 60 bracket में x minus 40 यहाँ पे आ गया. So you will say either x plus 60 is 0, therefore x equals to minus 60, or x minus 40 equals to 0, therefore x equals to 40. But speed है, speed negative नहीं हो सकता है, but speed can't be negative. अब ऐसा मत बोलना सर रिवर्स में गाड़ी भगाया इसलिए नेगेटिव हो गया. So therefore x equals to minus 60 is discarded. Therefore x equals to 40. और फाइनली हम लोग बोल सकते हैं therefore the speed of the car is, therefore speed of the car is 40 kilometers per hour. और हम लोग क्विकली चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है क्या नहीं. और 40 का स्पीड है तो 40 यहाँ पे सोच के देखो, 40 आपको 240 किलोमीटर कवर करना था 40 के स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा आपको, 6 घंटा लगेगा, राइट. अभी आपने क्या किया, 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड बढ़ा दिया, मतलब आपका 40 का स्पीड जो था ना वो 60 कर दिया आपने, तो क्या होगा, 240 को डिवाइड बाई 60 करना पड़ेगा. 60 के स्पीड से कितना घंटा लगेगा, 4 घंटा लगेगा. 2 घंटा कम लगा या नहीं लगा, कम लगा, मतलब हमारा आंसर जो है वो सही आया है. So students, this is question number 5. The second one, this is a non-textual sum, but very easy. Probability chapter एकदम easy chapter है, तो उसमें का question भी easy होता है. तो यहाँ पे क्या बोला है, there is a word given assassination, और उसमें से एक लेटर चूज किया है. तो इसमें से आप काउंट करो कितना लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लेटर्स आर देयर. सो क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो 13 लेटर्स में से भी एक लेटर चूज करेंगे ना, तो क्या चांसेस है कि उसमें से वॉवल आएगा, एंड सेकंड क्वेश्चन क्या चांसेस है उसमें से कॉन्सोनेंट आएगा. आपको पता है वॉवल मतलब ए ई आई ओ यू, उसको छोड़ के जो भी आएगा वो कॉन्सोनेंट हो जाएगा. तो एक आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा मैं, डोंट गेट कंफ्यूज विथ सेट्स. सेट्स में क्या होता है कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर सकते, यहाँ पे आप लेटर्स रिपीट करना ही है आपको. सो हम क्या बोलेंगे, a letter is chosen from the word assassination. A letter is chosen from the word assassination. Therefore sample space S क्या हो जाएगा, you have to write all the letters. अब ऐसा सोचो कि एक चिट्ठी बनाया है 13 लेटर्स का, उसमें एक में ए लिखा है, दूसरे में एस लिखा है.
तो व्हेन यू पिकअप ए कितने बार दिखेगा आपको उसमें, 3 बार दिखेगा ही ना, तो आपको सब लिखना है वैसे कॉमा करके, ASSASINATION। वे काउंट किया हमने 13 था, सो वी कैन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस इज 13। फिर जो भी क्वेश्चन पूछा उसको आप लोग इवेंट में एज्यूम कर लेंगे। पहले आपको बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चोजन इज अ वॉवेल, तो हम बोलेंगे लेट ए बी द इवेंट that letter chosen is a vowel, मतलब A E I O U में से कुछ भी होना चाहिए। क्या क्या है इसमें से वॉवेल में? यहाँ पे कौन सा दिख रहा है? ए दिख रहा है, ए 2 बार दिख रहा है, सो ए लिखा आपने, आई है वापस से ए है, आई है वापस से ए है, आई है ओ है। ये आप यहाँ पे मत लिखो तो अच्छा है, अननेसेसरी टीचर को लगेगा कि आपने ये आंसर में लिख दिया है, इसको मत लिखो। अभी कितना हो गया? एन ऑफ ए कितना हो गया? एन ऑफ ए इज 6। नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, दैट विल गिव यू 6 अपॉन 13। डोंट फॉरगेट टू राइट द फाइनल आंसर इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट। तो हम लिखेंगे देयरफॉर probability that the letter chosen is a vowel is 6/13. Probability that letter chosen is a vowel, letter chosen is a vowel, yeah, what's the probability? It is 6/13. उसके बाद में कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब क्या स्टूडेंट्स? वॉवेल छोड़ के जो भी सब आया वो सब कॉन्सोनेंट रहेगा, तो ये 6 लेटर्स छोड़ के बाकी सब वो सब कॉन्सोनेंट है। सो सेकेंड पार्ट, let B be the event that letter chosen is a consonant. So consonant में क्या क्या आएगा? S S again S S N T N. So are we getting 7 letters? 3 4 5 6 7, yes. N of B is 7. 6 letters vowels था, बाकी सब consonants हो जाएगा। N of B is 7. Probability of B is N of B upon N of S, that will give you 7 upon 13. So final answer sentence के फॉर्म में लिख दो, probability that letter chosen is a consonant is 7/13. I hope it is easy. And students, with this we complete prelim 6. Thank you.